أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین حضرات، جیسا کہ ہر ایک انسان کو یہ معلوم ہونا بھی چاہیے اور لوگوں کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے انسان اور جناتوں کو کیا شرف بخشا ہے، انسانوں کو کیا بخشا ہے اور جناتوں کو کیا بخشا ہے. تو انسانوں میں سب سے بڑا شرف تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان جیسی قوم، انسان جیسی مخلوق اور پیدا نہیں کی. اشرف المخلوقات انسان کو بنایا اللہ رب العزت نے، اور اس میں بھی سب سے افضل انسانوں میں جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان لے کر آئے ہیں. یہ سب سے بڑا شرف ہے. اور اس امت میں یہ شرف ہیں اور امت کے مقابلے میں کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، قرآن کریم جیسی آخری اور مکمل کتاب عطا فرمائی، اور سب سے بڑے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. یہ امت سب سے بعد میں زمین پر آئی ہے، دنیا میں آئی ہے، لیکن یہ اپنے نیک عملوں کے ذریعے سے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے سے جب دین پر زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں جب جائے گی تو سب سے پہلے امتوں میں اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت میں پہلے داخل فرمائیں گے. یہ انسانوں کا دنیا میں جناتوں کے مقابلے میں یہ شرف اور یہ قبولیت ہے. اس کے بعد دوستو بزرگوں، جنات ہیں، اور جناتوں کے اندر بھی دو قسم ہیں. یوں تو کہ ایک قسم ہے اقسام جناتوں کی ہیں، لیکن موٹے طور پہ ہم دیکھیں کہ جناتوں میں ایک تو وہ جن ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر، آخرت پر، قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. ایک وہ خبیث جنات ہیں جسے ہم شیطان کہتے ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے. جیسے انسانوں میں اللہ کے ماننے والے اور نہیں ماننے والے دونوں موجود ہیں، اسی طرح جناتوں میں بھی دیندار ہیں، اللہ والے ہیں، مسلمان ہیں، اور غیر مسلم، کافر، یہودی، عیسائی، نصرانی، جس طرح سے انسانوں میں اسی طرح سے یہ لوگ ہیں. بہرحال انسان کہاں رہتے ہیں، ان کی رہنے کی جگہ کہاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رہنے کی اور ٹہرنے کی جگہیں کیا بتائی حدیث میں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رفع حاجات کے لیے، یعنی بیت الخلاء یا پیشاب کے لیے آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے، جنگل کی طرف چلے. اس زمانے میں ہماری طرح تو یہاں ٹوائلٹ نہیں ہوتے جیسے ہمارے آج ہیں. ہمارے شہر میں ہمارے گھروں کے اندر ٹوائلٹ ہے، لیٹ باتھ اٹیچ ہیں. اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ جنگل کا زمانہ ہوا کرتا تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام حضرات صحابہ کرام جنگل میں رفع حاجات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رفع حاجات یعنی لیٹرن باتھ روم کے لیے آپ تشریف لے کر گئے. تو آپ کے مزاج میں اتنی حیا اور اس قدر شرم تھی کہ اللہ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے اور رفع حاجات کے لیے جب جنگل میں تشریف لے جاتے تو اتنی دور چلے جاتے کہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے. چنانچہ جب ہم گئے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجات کے لیے جا رہے ہیں اور اتنی دور چلے گئے ہیں کہ ہمیں نظر آنا بند ہو گیا. ہم وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہمیں کچھ لڑائی جھگڑے اور شور شگف اور چیخ و پکار کی بہت زور سے آواز آنے لگی. ہم سب گھبرائے، ڈرے. ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بعد آپ واپس تشریف لے آئے. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
हमें तो ये डर हो गया था कि आप वहाँ तशरीफ ले गए, अल्लाह आलम इसने झगड़े शोर शगब का ये तमाम माजरा हुआ, पत्नी आपके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, वो जिन्नातों में आपस में झगड़े हो रहे थे अपने मकाम को लेकर, अपनी जगहों को लेकर, कि ईमान वाले और गैर ईमान वालों के बीच में झगड़े हो रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी। चुनांचे वो दोनों मेरे पास आए और अपनी अपनी जगह जहाँ रहने की होती है, रहने और ठहरने की जगहों के बारे में मुझसे पूछने लगे। तो मैंने उनके दरमियान में कुछ फैसला कर दिया, उनकी मकाम बता दिए। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने किसको क्या जगह फरमाई कि मुसलमानों के रहने की जगह क्या बताई और जिन्नात काफिरों की जगह रहने की क्या बतलाई? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बुलंद मकाम है, बुलंदी पर, ऊंचाई पर, वो मैंने ईमान वालों को दे दी। यानी जैसे पहाड़ हैं और बुलंद मकाम कोई रिहाइश है बुलंदी पर, ऊंची जगहों पर, वहाँ मुसलमान जिन रहेंगे, और जो गैर मुस्लिम हैं उनको पहाड़ के जो दर्रे होते हैं, यानी पहाड़ की चोटी और समतल ज़मीन से लगी हुई जो हिस्से होती हैं, उसके बीच में जो गुफाएं होती हैं और इससे खड्डे पहाड़ में जगहें होती हैं, उसको दर्रे बोलते हैं। तो वो दर्रे जो है मैंने गैर मुस्लिमों को दे दिए हैं, और समंदर के जो टापू हैं और जजीरे, इसी तरह जो जंगलें या गैर आबादी हैं, वहाँ मैंने गैर मुस्लिम जिन्नातों को दे दिए हैं। इसी तरीके से जहाँ कीचड़ कचरा और गंदगी नापाकी होती है, वहाँ पर ये खबीस जिन्नात रहते हैं जो कि मुसलमान नहीं होते। इसलिए हमें इन गंदी जगहों से बचकर चलना है। तो किताबों में आता है कि जब मुशरिकीन मक्का पहाड़ी के करीब से गुजरते तो वो पनाह मांगते और जल्दी से रवाना होते। चुनांचे वो काफिर जिन्नात जो हैं वो उनको देखते कि ये लोग काफी डरे हुए हैं हमसे, तो जब वो अगली मर्तबा जब आते थे तो उनको और डराया करते थे, ताकि उनकी ताकत को देख के लोग उनके सामने झुकें और उनसे डरें। इसलिए बहुत सारी जगहों पर जिन्नात की पूजा करते हैं बहुत से लोग, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताया कि और कहाँ रहते हैं, और बैतुल खुला में रहते हैं, जिसे आज हम गटर बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, वहाँ पर गंदगी और नापाकी की जगह, जैसे गुसल खाना है, गुसल खाना पाक नहीं होता, गुसल को यानी नापाकी की धोने की जगह गुसल खाने को कहते हैं। तो गुसल खानों में और टॉयलेट में, इन चीज़ों के अंदर भी ये शैतान खबीस रहते हैं। इसी तरीके से असर और मगरिब की नमाज के बीच में हम छत के ऊपर न जाएं, बालकनी पे से खड़े होकर यूँ नीचे की तरफ नहीं झाँकें। तो बहुत सारे लोग इसकी लपेट और चपेट में आ जाते हैं, और ख़ास तौर से रात के वक्त में जो है, जब भी हम गुजरें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तरीके बताएं। घर से जब निकलें तो दुआ पढ़ के निकलें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे दरवाजे के बाहर में शैतान खबीस मौजूद होते हैं, हम निकलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते हैं। लेकिन जब घर से निकलते हैं हम कहते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो उस वक्त हमारे साथ एक हमजात होता है जो हर एक इंसान के साथ होता है, वो भी जिन्नात की नस्ल में से ही है। तो जब हम निकलते हैं उससे पहले हमारा जो हमजात है वो निकलता है दरवाजे के बाहर। तो जो बाहर शैतान खड़े हुए हैं वो हमारे हमजात से पूछते हैं, हमारा हमजात उन शैतान से पूछता है कैसे? तो वो कहता है कि निकलने वाले को तकलीफ पहुंचाने के लिए आए हैं। तो वो कहता है नहीं पहुंचा सकते। पूछते क्यों? तो बताता है कि इसने बड़े की पनाह ले ली, यानी अल्लाह की पनाह ले ली। तो ये बंदा जब पढ़ता है बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो अल्लाह की पनाह मिल जाती है, अल्लाह की हिफाजत उसके साथ हो जाती है। इसलिए जब घर से निकलें तो ये दुआएं पढ़ के निकलें। इसी तरीके से किताबों में लिखा है कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आदमी बैतुल खुला में जाता है, पेशाब या पखाने के लिए जब जाता है, और ये नंगे सर जाता है, औरत है या मर्द, नंगे सर जाता है और दुआ नहीं पढ़ता, और जब ये चला जाता है तो शैतान भी वहीं रहते हैं और ये इंसान भी वहीं जो है अपना सतर खोल के बैठता है।
तो इसके साथ खेलते हैं और शरारत करते हैं, तो बड़ी बड़ी बीमारियां उसमें पैदा हो जाती है। इसी तरीके से जब एक इंसान बैतुल खुला में जाता है पेशाब पखाने के लिए, औरत हो या मर्द, जब वो सर को ढककर जाता है, मर्द जो है वो टोपी पहनकर जाता है और औरतें जो हैं वो सर को ढककर ओढ़नी ओढ़कर जब जाती हैं, और जाने से पहले जब दुआ पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो शैतान भी अंदर होते हैं और हमारी शर्मगाह और उनकी नजरों के दरमियान अल्लाह एक पर्दे को, एक दीवार से एक पर्दा हाइल कर देते हैं। तो वो ये कहते हैं शैतान, अरे वो बंदा आया तो था, कहाँ है? अब वो ढूंढता है अपनी नजरों से, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। क्यों? कि उसकी आंखों के और हमारे दरमियान अल्लाह एक पर्दा डाल देते हैं। तो अब ये शयातीन के शर से, उसके नुकसान से ये बंदा और ये बंदी बच गई। किस वजह से? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के ऊपर अमल किया। हुजूर ने फरमाया कि जब बैतुल खला में जाए तो बैतुल खला से जाने से पहले की दुआ पढ़ो, और जब बैतुल खुला से आ जाएं तो कहें गुफरानका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जिसने हमसे तकलीफ देने वाली चीज को दूर किया और हमें चैन बख्शा। आप देखो ये भी बड़ा मसला है, अगर किसी का पेशाब आए है जी और वो रुक जाए तो फिर क्या हो कि बड़ तकलीफ होती है, आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए बैतुल खुला अगर नहीं आए तो कितना परेशान, कितनी तकलीफ। इसलिए इस दुआ में ये कि अल्लाह ने हमें उससे निजात दी और हमें चैन बख्शा, वरना जिनके पेशाब पखाने बंद होते हैं देखो अस्पतालों में भर्ती है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरह हम जब ऐसी जगह जहाँ दरख्त हैं और कचरे का ढेर है, गंदगी नापाकी है, तो अल्लाह का जिक्र आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ते हुए जाए ताकि इन चीज़ों से बचे। और इसी के साथ साथ एक इन शयातीन के असरात से और इनके नापाक खतरात से बचने के लिए जो आदमी बहुत सवेरे, यानी जैसे ही वो उठते ही एक साथ लगातार मुसलसल तवातिर के साथ 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके असरात से हिफाजत फरमाते हैं, फिर अल्लाह खुद अपनी पनाह अता कर देता है इंसान को। इसलिए उठते ही 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ ले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माज़ूतीन पढ़ा करो। माज़ूतीन कहते हैं चारों कुल को, इसलिए जो 7 मरतबा आयतुल कुर्सी एक साथ पढ़ ले और फिर चारों कुल को 3 मरतबा पढ़ ले, सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसकी शैतान जिन्नात खबीसों से अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं। औरत हो या मर्द, हर एक इंसान को कामयाबी अगर चाहिए और इनके खतरात से बचने हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल बताए इनकी पाबंदी करें, इंशाअल्लाह इनसे इनके असरात और खसरात से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।